ઓમ નમઃ. આપના જીવનમાં ઘણા બધા કષ્ટો જો આવતા હોય, ચાલતા હોય અને હંમેશા જીવન કષ્ટભર્યું રહેતું હોય, તો એવા સમય સંજોગો દરમિયાન તમારા મનમાં ક્યાંક એવો વિચાર આવે કે શું ખરેખર આપણે સાચા હૃદયથી ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરીએ, કોઈ એવા પવિત્ર સ્થાન પર દર્શન કરીએ અને દર્શન જેવા પરિપૂર્ણ થાય એની ત્રીજી ચોથી મિનિટથી આપણા જીવનના રસ્તા મોકલતા જાય. આપ આપના જીવનમાં આવી કોઈ મનોકામના કે ઈચ્છા જો ધરાવતા હોય, આપના જીવનમાં, આપના પરિવારમાં, આપના આર્થિક ક્ષેત્રમાં તેમજ આપના સામાજિક વર્તુળમાં આવો કોઈ પણ પ્રશ્ન તમને સતાવતો હોય અને તમે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવા છતાંય આવતી મુશ્કેલીઓ, આવતા અવરોધો, આવતા ઓબ્સ્ટેકલોનો રસ્તો ના કરી શકતા હોય, એ ચાહે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, શારીરિક પ્રશ્ન કેમ નથી, માનસિક પ્રશ્ન કેમ નથી, સામાજિક પ્રશ્ન કેમ નથી, વારંવાર આવતા પ્રશ્નો કેમ નથી, ઘરમાં લગ્ન, વિવાહ અથવા તો શુભ પ્રસંગોમાં આવવામાં પ્રશ્નો ઊભા થાય છે એવા પ્રશ્નો કેમ નથી, કે પછી દર વર્ષે જે કમાણી થાય છે એ દવાઓમાં વપરાય છે એ પ્રશ્ન પણ કેમ નથી. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નોનું નિરંતર અથવા તો કોઈ અટકેલા પ્રશ્નનું સમાધાન કરવા માટે જો આપ ઈચ્છતા હોય અને આપ એવી ભાવના, શ્રદ્ધા અને આસ્થા રાખતા હોય, તો દવાની જેમ, ધર્મની જેમ નહીં, દવાની જેમ જો સોલ્યુશન બતાવું છું એના ઉપર ચાલજો. દવાની જેમ, ફરીવાર કહું છું, શ્રદ્ધાથી એ દવાનો ઉપયોગ, એ દવા, એ માર્ગ પર ચાલવાનો પ્રયત્ન તમે કરજો. અને માર્ગ છે ઓમકારધામ તીર્થમાં પ્રતિષ્ઠિત બિરાજમાન શ્રી ક્ષેત્રપાળવીર. એક રવિવાર તમે દર્શન કરવા જશો, મહિનાનો એક રવિવાર, ત્યારથી તમારા પ્રશ્નો ઉકેલવાના શરૂ થશે અને 7મો રવિવાર તમે પૂર્ણ કરશો એ પહેલાં તો તમારા પ્રશ્નોના સમાધાન થઈ ચૂક્યા હશે. પણ પહેલા જ રવિવારમાં જેવા દર્શન તમે પરિપૂર્ણ કરશો ત્યાં, એટલે તરત જ તમને તમારા પ્રોબ્લેમમાંથી મુક્તિ મળતી હોય તે ખબર પડી જશે. મારા શબ્દો પર ચાલીને તમારે ઓમકારધામ તીર્થ જે વિરમગામ શંકેશ્વર હાઈવે ઉપર આવેલું છે, ત્યાં શ્રી ક્ષેત્રપાળવીરનું મંદિર, લક્ષ્મી દેવીનું કળશ મંદિર, નવગ્રહ કળશ મંદિર કે જેમાં નવગ્રહ પ્રસ્થાપિત છે, નાકોડા ભૈરવજી પ્રસ્થાપિત છે, કુબેરદેવ પ્રસ્થાપિત છે. એ મંદિરના દર્શન કરીને જ્યારે તમે બહાર નીકળશો તો તમે અચૂક તમારા પ્રશ્નોમાંથી, પ્રોબ્લેમોમાંથી નિરાકરણ મળશે. તમારે ખાલી ત્યાં સુધી પહોંચવાની જરૂર છે. તમારા નસીબ આડે જે પાંદડું છે, કર્મની જે કઠણાઈ છે, જીવનની જે સમસ્યા છે, એ સમસ્યાનું આ સચોટ સમાધાન છે. ત્યાં તમારે નથી કોઈ બાધા રાખવાની, ત્યાં નથી તમારે કોઈ પણ જાતની પૂજા અર્ચના કરવાની, ત્યાં તમારે કશું કોઈ જ જાતનો કોઈ જ બંધનમાં આવવાનું નથી ને માત્ર દર્શન કરી અને તમારે તમારા કષ્ટ શ્રી ક્ષેત્રપાળવીરના દરબારમાં કહેવાના છે કે મને આ કષ્ટમાંથી મુક્તિ મળે. આ પહેલો રવિવાર છે અને આજથી જ્યારે હું બહાર નીકળું ગેટની અને મારા પ્રશ્નોના સમાધાન થવાની શરૂઆત થાય, મારી ગેરંટી છે કે તમે જોશો કે તમને તરત એનું પરિણામ શ્રી ક્ષેત્રપાળવીરના આશીર્વાદ અને દિવ્ય કૃપા પ્રાપ્ત થશે. કેમ થશે? કારણ કે ક્ષેત્રપાળવીરની મૂર્તિની અંદર બીજ મંત્રો, ઉર્જાયુક્ત મંત્રોથી મૂર્તિમાં પ્રતિષ્ઠા કરીને શ્રી ક્ષેત્રપાળવીરની શક્તિઓ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવી છે. એ પ્રસ્થાપિત થયેલ મૂર્તિમાં જે શક્તિઓ, મંત્રોની ઉર્જા પૂરવામાં આવી છે, જ્યારે તમે એના દર્શન કરશો ત્યારે ચમત્કારની અનુભૂતિ કરશો. આ દુનિયામાં ક્યાંય જો ચમત્કારની કલ્પનાનો અવકાશ તમને તરત દેખવો હોય તો ઓમકારધામ તીર્થ શ્રી ક્ષેત્રપાળવીરના ચરણોમાં તમને અચૂક દેખાશે. હંમેશા જ્યારે પ્રોબ્લેમ હોય, પીડા હોય, ત્યારે ધર્મ, જાતિ, વર્ગ, વર્ણ વિચારવાના ના હોય.
તમને હું એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવું. જ્યારે એક હિન્દુને તાવ આવે છે તો એ પેરાસિટામોલ લે છે. જ્યારે એક શીખને તાવ આવે છે ત્યારે પેરાસિટામોલ લે છે. જ્યારે એક જૈનને તાવ આવે છે ત્યારે પેરાસિટામોલ લે છે. જ્યારે કોઈ પણ ધર્મની વ્યક્તિને તાવ આવે છે ત્યારે પેરાસિટામોલ જ લે છે. ડૉક્ટર પણ એ જ લખે છે, કંપની ભલે અલગ હોય પણ એમાં મૂળ ડ્રગ્સ પેરાસિટામોલ હશે. એવી જ રીતે જ્યારે તમે શ્રી ક્ષેત્રપાળ વીરના દર્શન કરવા તમારા પ્રોબ્લેમ માટે જાઓ ત્યારે તમે કયા ધર્મને અનુસરો છો, કયા ધર્મને ફોલો કરો છો, કયા ઈષ્ટદેવમાં ઈશ્વરમાં માનો છો, એ વાતને આની સાથે જોડતા નહીં. ઘણી વાર એવું થાય ને કે હું તો ભગવાનને માનું છું, ક્ષેત્રપાળ વીરના દર્શન કરવા કેમ જાઉં? તો તમારે એ વખતે મનને જવાબ આપવાનો છે કે મારે મારા પ્રોબ્લેમના સમાધાન માટે દવારૂપી દર્શન માટે હું જઈ રહ્યો છું. એક દવા તરીકે દર્શન માટે એમના દરબારમાં જઈ રહ્યો છું અને મારા કષ્ટો, મારા પીડા દર્શન કરવાથી મુક્ત થતા હોય તે મારા ઈષ્ટદેવની કૃપાના કારણે હું એ જગ્યાએ પહોંચ્યો છું. એવી ભાવના તમારા મનમાં ઉદ્ભવ થયો. ત્યાં સુધી તમે તમારા પ્રશ્નોના સમાધાન માટે જે સોલ્યુશન હશે, જે દવા હશે, એનો તમે દવા તરીકે ઉપયોગ નહીં કરો, એની શક્તિ તરીકે ઉપયોગ નહીં કરો, ત્યાં સુધી ચપટીમાં પતી જતો પ્રશ્ન તમારા વર્ષોના વર્ષો જીવનના બગાડશે. હજારો ભક્તોના પ્રશ્ન શ્રી ક્ષેત્રપાળ વીરના દર્શન કરવાના માધ્યમથી દૂર થયા છે. ચમત્કાર થયો છે. ચમત્કાર આ શબ્દ જરાય મોટો વધારે પડતો નથી. જો તમે દર્શન કરશો તેની અનુભૂતિ તમે પોતે જ કરશો. હું ઈચ્છું છું કે દુનિયાનો દરેક વ્યક્તિ આ પૃથ્વી ઉપર એના જીવનમાં ચાલતા પ્રશ્નોમાંથી એને હળવાશ મળે, પૂર્ણ મુક્તિ મળે. ભલે એક પ્રશ્ન પતે અને પછી થોડો સમય જાય અને પછી બીજો પ્રશ્ન આવે, એનું એ સમાધાન થાય. તો જેથી એ જીવન સારી રીતે શાંતિથી જીવી શકે અને એટલા માટે જ ત્યાં ઓમ શ્રી ક્ષેત્રપાળ વીરની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા પૂરા બીજ મંત્રો, ઉર્જાયુક્ત મંત્રો સાથે મેં કરી છે. ઈશ્વરે મને નિમિત્ત કદાચ એટલે જ બનાવ્યું હશે કે મનુષ્યના જીવનમાં ચાલતા પ્રશ્નોનું સમાધાન આજના કળયુગમાં ઝડપથી મળે, ઇન્સ્ટન્ટ મળે. આજના લોકોને ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન, ઇન્સ્ટન્ટ સમાધાનની ટેવ પડી ગઈ છે. અથવા તો જોઈએ છે એવું કહીએ તો કદાચ ખોટું નથી. તો તમે તમારા જીવનના પ્રશ્નોમાં બીજું કંઈ જ વિચાર્યા વગર માત્ર દર્શન માટે પહોંચી જાઓ. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એનું લોકેશન આપવામાં આવ્યું છે, તો એ લોકેશનના માધ્યમથી પણ આપ જઈ શકો છો. સાચું કહું તો છેલ્લે એટલું ચોક્કસ કહીશ કે જીવનમાં જે માર્ગ આપણા પ્રશ્નોના સમાધાનનો હાથ વગો હોય, જેમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ખર્ચાની ગુંજાઈશ ઓછી અને શ્રદ્ધાની ગુંજાઈશ જ્યાં વધારે હોય અને એવો માર્ગ હાથ વગો હોય, તેનો ઉપયોગ ચોક્કસ કરવો જોઈએ. શ્રી ક્ષેત્રપાળ વીરના આશીર્વાદ, ચમત્કાર અને આ ભક્તજનો ત્યાં દર્શન માટે જાઓ ત્યારે આ મંત્ર શક્તિપાઠને તમારે સાંભળવાનો છે. દર્શન કર્યા બાદ આપની મનોકામનાનો સંકલ્પ કર્યા બાદ મારો આ મંત્ર શક્તિપાઠ ત્યાં તમે મોબાઈલમાં ચાલુ કરીને સાંભળી શકો. હું આ મંત્ર શક્તિપાઠ આપને આપી રહ્યો છું. હું માનું છું અને મને વિશ્વાસ છે કે આપના કષ્ટ અચોક દૂર થશે. ઓમ પ્રભમ ક્ષેત્રપાળ વીરાય રક્ષામિહ મહ નમ. ઓમ મનવાહ મનવાહ વિંદાવિહ મનોત્યાની નમઃ. ઓમ પ્રભમ 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 વિંદાવહ મનોત્યાની નમઃ. ઓમ કુર્ભંગઃ વિંદસ્યઃ વાવવ્યા નમઃ. ઓમ દવ્યામહ વિંદવ્યઃ કુર્વામહ નમઃ. ઓમ શ્રી ક્ષેત્રપાળ વીર રક્ષા વિંદ 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 મહાસિદ્ધ નમઃ. ઓમ નમઃ. શ્રી ક્ષેત્રપાળ વીરની કૃપા, આશીર્વાદ આપના પર, આપના પરિવાર પર રહે અને આપની મનોકામના પૂર્ણ થાય એવા મારા આશીર્વાદ છે. ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ. સદગુરુ ઓમ ઋષિ પ્રિતેશભાઈ યુટ્યુબ ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવો અને આવનારા લેટેસ્ટ વિડીયો આપ જોઈ શકો છો. सद्गुरु शरण में लीजिए,
दीजे वो वरदान। ओंकार के तेज से मिटे तिमिर अज्ञान। जय ओंकार सृष्टि के करता, नाद ब्रह्म त्रिभुवन के भरता। तीन गुणों के तुम हो स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी। शास्त्र पुराण अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरिहर और सनकादि। जपत निरंतर ओम की माला, सर्जक संहारक रखवाला। सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे। ओम जपत ही ध्वनि वो जागे, भूत पिशाच मूठ लई भागे। शब्द सूर सब ओम से प्रकटत, ओमकार है नाद अनाहत। योगी ध्यान में रटे निरंतर, ओम है सत्य शिवम और सुंदर। रिद्धि सीधी है ओम की दासी, पड़े नहीं गल जम की फांसी। ग्रह दशा सब ओम सुधारे, जीवन में हो वारे न्यारे। मन क्रम वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ओम से वो सद्बुद्धि। आत्म अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे। अगम निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे। प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ओम नर नारी। ओम नमः का मंत्र जो ध्यावे, तीन लोक की संपत पावे। ओम त्रित्रांश क्रिया की शक्ति, इसी जन्म में दे दे मुक्ति। जीवन में भर देता ऊर्जा, ओम समंत्र नहीं कोई दूजा। ओमकार है प्राण चेतना, सुर नर मुनिवर करे वंदना। प्रणव मंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना। ज्ञान प्रकाश हृदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे। सात चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन। योग शक्ति का ओम है द्योतक, सतचित आनंद का है वाचक। वेद उवाच हरि ओम तत् सत, जग है मिथ्या ओम ही है सत। ओम है गंगा जल सा पावन, कर देता है शुद्ध जो तन मन। ओंकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन। दृश्य पदार्थ सर्व विनाशी, कालातीत ओम अविनाशी। ओमकार को राम ने ध्याया, जनक सभा में धनुष उठाया। गोविंद ने जब गीता गाई, ओम अपनी पहचान बताई। निराकार साकार मेरा जय, सृष्टि के कण कण में विराजय।
धर्म अर्थ काम और मुक्ति, ओम से मिले सर्व संतुष्टि। ओम के बिना है यज्ञ अपूर्ण, ओम से ही स्वाहा संपूर्ण। ओमकार को जिसने ध्याया, लगी उसे ना जग की माया। 184 फंद छुड़ाया, मोक्ष द्वार पे ओम ले आया। पंच महाभूतों में समाया, अंतः चतुष्करण में छाया। ओमकार गायत्री विधा में, अमर तत्व है ओम सुधा में। ओमकार जो गावे निस दिन, सारे कष्ट मिटे हर फल छिन। शंकर के डमरू में गाजे, कृष्ण की मुरली में बाजे। पार्श्वनाथ भगवान के भीतर, गूंजे मंत्र ओम ही निरंतर। ओम ऋषि समान सर्वात्मा, ओम है सूर्य सरिस परमात्मा। जो यह पढ़े ओंकार चालीसा, सर्व कार्य हो सिद्ध हमेशा। ओम पुरुष सृष्टि करना, है पर ब्रह्म का रूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओम नमः। आज मैं आपको एक ऐसा मार्ग बताने जा रहा हूँ जिस मार्ग की दुनिया में बहुत से लोग तलाश कर रहे हैं। क्या एक बार किसी जगह पर जाकर दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगने से वो कार्य सिद्ध हो सकता है? तो हाँ, अगर आप ओमकार धाम तीर्थ में प्रतिष्ठित श्री क्षेत्रपाल वीर के दर्शन करने के लिए अगर आप जाते हैं, तो आपके वो कष्ट एक बार के दर्शन से मिट जाएंगे, या आपके कष्ट में, पीड़ा में बहुत सी कमी आ जाएगी, कम हो जाएगा वो दर्द, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता नजर आएगा। एक बार के दर्शन से ही अगर इंसान को ये चमत्कार मिल सकता है, तो इस चमत्कार के दर पर क्यों न जाया जाए। अपनी मनोकामना लेकर ओमकार धाम तीर्थ के दर्शन करने के लिए, क्षेत्रपाल वीर के दर्शन करने के लिए आप जाए। दर्शन करने की प्रक्रिया पद्धति मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्षेत्रपाल वीर दादा के मंदिर में जाना है। दोनों हाथ जोड़ के आपकी मनोकामना का संकल्प करना है और यह सुनिश्चित करना है कि आपने अपनी मनोकामना को अच्छी तरह से मांगा है या मांग लिया है। प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने खड़े होना है, दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना को, अपने संकल्प को दोहराना है अच्छी तरह से। मेरा दावा है कि एक बार दर्शन करने से आपके दुख दूर होते आपको नजर आएंगे, आपके कष्ट और पीड़ा में से आपको मुक्ति मिलेगी। ओम श्री क्षेत्रपाल वीर के दर्शन आपके लिए एक चमत्कार साबित होगा। उस मूर्ति में ऐसा क्या है कि आपके कष्ट और पीड़ा हरे जा सकते हो या दूर हो सकते हैं? उस मूर्ति में ऐसे मंत्रों से प्रतिष्ठा हुई है, उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अगर आप सच्चे मन से अपनी बात को सही ढंग से अगर रखते हैं, तो आपको एक बार के दर्शन में ही चमत्कार दिखेगा। आप अपने हजारों लोगों को बोलेंगे
अगर आपको एक बार दर्शन करने जाना है तो वहाँ जाइए, एक बार में आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ना कोई आपको बाधा रखनी है, ना कुछ आपको देना है, सिर्फ और सिर्फ उनके सामने सन्मुख खड़े रहकर अपनी मनोकामना को, संकल्प को, अपनी इच्छा को दोहराना है और वो चमत्कार होगा। घर से जब निकले तो पूरी आस्था से निकले, साथ में उन लोगों को ही ले जो लोग आपकी आस्था में जुड़े हुए हो, कि आप जो कह रहे हैं उनमें उनको आस्था है। वरना आप खुद जाए, अपने मनोकामना का संकल्प करें और फिर चमत्कार देखें। दुनिया के हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई हम किसी भी धर्म को मानते हैं, अगर एक बार किसी जगह दर्शन करने से हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं तो हमें उस जगह जाना है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उस जगह का पता बता दिया है। अब आप कब जाते हैं, किस वक्त जाते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा मानना यह है कि रविवार के दिन, इतवार के दिन, आपको संडे के दिन क्षेत्रपाल दादा के दर्शन करने जाना चाहिए या फिर पूनम के दिन जाना चाहिए। एक बार दर्शन करने में आपका फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये वीडियो सुनते ही आप एक बार दर्शन का संकल्प करें, अगर आपकी मनोकामना आप पूरी करना चाहते हैं एक बार दर्शन से। तो ओमकार का दिव्य चैतन्य क्षेत्रपाल वीर दादा की कृपा आप पर बरसे और बरसती रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो। सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान। ओंकार के तेज से मिटे तिमिर अज्ञान। जय ओंकार सृष्टि के करता, नाद ब्रह्म त्रिभुवन के भरता। तीन गुणों के तुम हो स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी। शास्त्र पुराण अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरिहर और सनकादि। जपत निरंतर ओम की माला, सर्जक संहारक रखवाला। सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे। ओम जपत ही ध्वनि वो जागे, भूत पिशाच मूठ लई भागे। शब्द सूर सब ओम से प्रकटत, ओमकार है नाद अनाहत। योगी ध्यान में रटे निरंतर, ओम है सत्य शिवम और सुंदर। रिद्धि सीधी है ओम की दासी, पड़े नहीं गल जम की फांसी। ग्रह दशा सब ओम सुधारे, जीवन में हो वारे न्यारे। मन क्रम वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ओम से वो सद्बुद्धि। आत्म अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे। अगम निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे। प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ओम नर नारी। ओम नमः का मंत्र जो ध्यावे, तीन लोक की संपत पावे। ओम त्रित्रांश क्रिया की शक्ति, इसी जन्म में दे
भर देता ऊर्जा, ओम सा मंत्र नहीं कोई दूजा। ओमकार है प्राण चेतना, सुर नर मुनिवर करे वंदना। प्रणव मंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना। ज्ञान प्रकाश हृदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे। सात चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन। योग शक्ति का ओम है द्योतक, सतचित आनंद का है वाचक। वेद उवाच हरि ओम तत्सत, जग है मिथ्या ओम ही है सत। ओम है गंगा जल सा पावन, कर देता है शुद्ध जो तन मन। ओमकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन। दृश्य पदार्थ सर्व विनाशी, कालातीत ओम अविनाशी। ओमकार को राम ने ध्याया, जनक सभा में धनुष उठाया। गोविंद ने जब गीता गाई, ओम अपनी पहचान बताई। निराकार साकार मेरा जय, सृष्टि के कण कण में विराजय। धर्म अर्थ काम और मुक्ति, ओम से मिले सर्व संतुष्टि। ओम के बिना है यज्ञ अपूर्ण, ओम से ही स्वाहा संपूर्ण। ओमकार को जिसने ध्याया, लगी उसे ना जग की माया। 184 फंद छुड़ाया, मोक्ष द्वार पे ओम ले आया। पंच महाभूतों में समाया, अंतः चतुष्करण में छाया। ओमकार गायत्री विधा में, अमर तत्व है ओम सुधा में। ओमकार जो गावे निस दिन, सारे कष्ट मिटे हर पल छिन। शंकर के डमरू में गाजे, कृष्ण की मुरली में बाजे। पार्श्वनाथ भगवान के भीतर, गूंजे मंत्र ओम ही निरंतर। ओम ऋषि समान सर्वात्मा, ओम है सूर्य सरिस परमात्मा। जो यह पढ़े ओमकार चालीसा, सर्व कार्य हो सिद्ध हमेशा। ओम पुरुष सृष्टि करना, है पर ब्रह्म का रूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओम नमः। ओमकार धाम तीर्थ में प्रतिष्ठित विराजमान श्री क्षेत्रपाल वीर के दर्शन के लिए मैंने कहा, उसके बाद बहुत से भक्तजन जाने लगे। बहुत से भक्तजनों को एक बार दर्शन करने के बाद चमत्कारिक फायदा मिला है। मैं चाहता हूं कि वो भक्तजन वीडियो पर आकर अपनी बात को दूसरे भक्तों को प्रेरणा देने के लिए कहे और
उसके लिए हम जिन्होंने एक बार दर्शन करके, दो बार दर्शन करके जो अनुभूति की है वो उनके ही शब्दों में बयान करें और आप तक पहुंचाए, ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप भी अपनी पीड़ा के समाधान के लिए ओमकार धाम तीर्थ पानवा की मुलाकात ले सके, दर्शन कर सके क्षेत्रपाल वीर के। ओमकार धाम तीर्थ क्षेत्रपाल वीर की मूर्ति में ऐसी ऊर्जा की प्रतिष्ठा की हुई है कि आप पूरे मन और श्रद्धा से अगर जाएंगे तो आपकी मनोकामना एक बार के दर्शन से परिपूर्ण होगी। प्रैक्टिकल तौर से सोचे तो कोई खर्चा नहीं, जाने आने का खर्चा है, वहां तो आपको दोनों हाथ मूर्ति के सामने खड़े करके संकल्प करना है आपकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा, और सुखड़ी का प्रसाद क्षेत्रपाल वीर के चरणों में चढ़ाना है। जो लोग आस्तिक है और जो लोग श्रद्धा रखते हैं और जो लोग ये बिलीव करते हैं कि चमत्कार इस कलयुग में होता है, वो लोग जीवन में अवश्य जल्द से जल्द एक बार क्षेत्रपाल वीर के दर्शन के लिए ओमकार धाम तीर्थ पानवा जाए। वहां आपको पूजा करा के एक दिव्य यंत्र संस्था की ओर से भेंट किया जाएगा, जिसे आपको आपकी मनोकामना की पूर्ति होने तक या हमेशा रखना है। आपका जीवन, आपके कार्य, आपके संकल्प परिपूर्ण हो जाएंगे अगर आप एक बार ओमकार धाम तीर्थ श्री क्षेत्रपाल वीर दादा के दर्शन के लिए पधारेंगे। मेरा मकसद यही है कि दुनिया में हर इंसान खुश और समृद्ध रहे और उसकी पीड़ा जितनी भी हो सके उतनी कम हो। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद और क्षेत्रपाल वीर की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो। सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान, ओमकार के तेज से बिटे तिमिर अज्ञान। जय ओमकार सृष्टि के करता, नाद ब्रह्म त्रिभुवन के भरता, तीन गुणों के तुम हो स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी। शास्त्र पुराण अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरिहर और सनकादि, जपत निरंतर ओम की माला, सर्जक संहारक रखवाला, सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे, ओम जपत ही ध्वनि वो जागे, भूत पिशाच मूठ लई भागे। शब्द सूर सब ओम से प्रकटत, ओमकार है नाद अनाहत, योगी ध्यान में रटे निरंतर, ओम है सत्य शिवम और सुंदर, रिद्धि सीधी है ओम की दासी, पड़े नहीं गल जम की फांसी। ग्रह दशा सब ओम सुधारे, जीवन में हो वारे न्यारे, मन क्रम वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ओम से वो सद्बुद्धि, आत्म अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे, अगम निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे। प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ओम नर नारी। ओम नमः का मंत्र जो ध्यावे,
तीन लोक की संपत पावे। ओम त्रित्रांश क्रिया की शक्ति इसी जन्म में दे मुक्ति। जीवन में भर देता ऊर्जा, ओम समंत्र नहीं कोई दूजा। ओमकार है प्राण चेतना, सुर नर मुनिवर करे वंदना। प्रणव मंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना। ज्ञान प्रकाश हृदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे। सात चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन। योग शक्ति का ओम है द्योतक, सतचित आनंद का है वाचक। वेद उवाच हरि ओम तत्सत, जग है मिथ्या ओम ही है सत। ओम है गंगा जल सा पावन, कर देता है शुद्ध जो तन मन। ओमकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन। दृश्य पदार्थ सर्व विनाशी, कालातीत ओम अविनाशी। ओमकार को राम ने ध्याया, जनक सभा में धनुष उठाया। गोविंद ने जब गीता गाई, ओम अपनी पहचान बताई। निराकार साकार मेरा जय, सृष्टि के कण कण में विराजय। धर्म अर्थ काम और मुक्ति, ओम से मिले सर्व संतुष्टि। ओम के बिना है यज्ञ अपूर्ण, ओम से ही स्वाहा संपूर्ण। ओमकार को जिसने ध्याया, लगी उसे ना जग की माया। 184 फंद छुड़ाया, मोक्ष द्वार पे ओम ले आया। पंच महाभूतों में समाया, अंतः चतुष्करण में छाया। ओमकार गायत्री विधा में, अमर तत्व है ओम सुधा में। ओमकार जो गावे निस दिन, सारे कष्ट मिटे हर पल छिन। शंकर के डमरू में गाजे, कृष्ण की मुरली में बाजे। पार्श्वनाथ भगवान के भीतर, गूंजे मंत्र ओम ही निरंतर। ओम ऋषि समान सर्वात्मा, ओम है सूर्य सरिस परमात्मा। जो यह पढ़े ओमकार चालीसा, सर्व कार्य हो सिद्ध हमेशा। ओम पुरुष सृष्टि करना, है पर ब्रह्म का रूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओम नमः। नाग पांचम के दिन ओमकार धाम तीर्थ में विराजमान श्री क्षेत्रपाल वीर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, उनकी कृपा और करुणा दृष्टि आपको मिले।
उनके आशीर्वाद से आप करोड़पति से लेकर अरबपति तक की जर्नी पूरी करें। आपका कोई भी प्रॉब्लम पीड़ा हो उसका समाधान ओमकार धाम तीर्थ में विराजमान श्री क्षेत्रपाल वीर की आशीर्वाद कृपा करुणा से दूर हो। नकारात्मक एनर्जी अगर आपके घर में और जीवन में हो तो उनके आशीर्वाद से दूर हो। उसके लिए मैं आपको मंत्र शक्तिपात देने जा रहा हूँ। भगवान आपकी सारी मनोकामना क्षेत्रपाल वीर के आशीर्वाद से पूर्ण हो। मंत्र शक्तिपात सुने। ओम श्री क्षेत्रपाल वीराय नमस्तुभ्य नमामि नमामि नमः। ओम श्री क्षेत्रपाल वीराय नमस्तुभ्य नमामि नमामि नमः। ओम वीरम 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 क्षेत्रपाल वीरम नमः। ओम वीरम 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 क्षेत्रपाल वीरम नमः। ओम रक्षामतम मनोतानि क्षेत्रपाल वीर नमः। ओम रक्षामिता 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 क्षेत्रपाल वीर नमः। ओम 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 क्षेत्रपाल वीराय नमः। ओम 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 क्षेत्रपाल वीराय नमः। ओम 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 क्षेत्रपाल वीराय नमः। ओम नमः। नाग पंचमी के दिन क्षेत्रपाल वीर का संकल्प करें और आपकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा संकल्प करें। यह मंत्र शक्तिपात आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक दिन में एक बार सुने। ओमकार का दिव्य चैतन्य आशीर्वाद और ओम श्री क्षेत्रपाल वीर की कृपा आपके जीवन में बनी रहे ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो। सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान। ओंकार के तेज से बिटे तिमिर अज्ञान। जय ओंकार सृष्टि के करता, नाद ब्रह्म त्रिभुवन के भरता। तीन गुणों के तुम हो स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी। शास्त्र पुराण अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरिहर और सनकादि। जपत निरंतर ओम की माला, सर्जक संहारक रखवाला। सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे। ओम जपत ही ध्वनि वो जागे, भूत पिशाच मूठ लई भागे। शब्द सूर सब ओम से प्रकटत, ओमकार है नाद अनाहत। योगी ध्यान में रटे निरंतर, ओम है सत्य शिवम और सुंदर। रिद्धि सीधी है ओम की दासी, पड़े नहीं गल जम की फांसी। ग्रह दशा सब ओम सुधारे, जीवन में हो वारे न्यारे। मन क्रम वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ओम से वो सद्बुद्धि। आत्म अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे। अगम निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे। प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ओम नर नारी। ओम नमः का मंत्र जो ध्यावे, तीन लोक की संपत पावे। ओम त्रित्रांश क्रिया की शक्ति, इसी जन्म में दे
कर देता ऊर्जा, ओम समंत्र नहीं कोई दूजा। ओमकार है प्राण चेतना, सुर नर मुनिवर करे वंदना। प्रणव मंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना। ज्ञान प्रकाश हृदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे। सात चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन। योग शक्ति का ओम है द्योतक, सतचित आनंद का है वाचक। वेद उवाच हरि ओम तत् सत, जग है मिथ्या ओम ही है सत। ओम है गंगा जल सा पावन, कर देता है शुद्ध जो तन मन। ओमकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन। दृश्य पदार्थ सर्व विनाशी, कालातीत ओम अविनाशी। ओमकार को राम ने ध्याया, जनक सभा में धनुष उठाया। गोविंद ने जब गीता गाई, ओम अपनी पहचान बताई। निराकार साकार मेरा जय, सृष्टि के कण कण में विराजय। धर्म अर्थ काम और मुक्ति, ओम से मिले सर्व संतुष्टि। ओम के बिना है यज्ञ अपूर्ण, ओम से ही स्वाहा संपूर्ण। ओमकार को जिसने ध्याया, लगी उसे ना जग की माया। 184 फंद छुड़ाया, मोक्ष द्वार पे ओम ले आया। पंच महाभूतों में समाया, अंतः चतुष्करण में छाया। ओमकार गायत्री विधा में, अमर तत्व है ओम सुधा में। ओमकार जो गावे निस दिन, सारे कष्ट मिटे हर फल छिन। शंकर के डमरू में गाजे, कृष्ण की मुरली में बाजे। पार्श्वनाथ भगवान के भीतर, गूंजे मंत्र ओम ही निरंतर। ओम ऋषि समान सर्वात्मा, ओम है सूर्य सरिस परमात्मा। जो यह पढ़े ओमकार चालीसा, सर्व कार्य हो सिद्ध हमेशा। ओम पुरुष सृष्टि करना, है पर ब्रह्म का रूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। आज के वीडियो में हम देखेंगे संत श्री ओम ऋषि के द्वारा सिद्ध किए हुए मंत्र से विचारों के डर से मुक्ति की चमत्कारिक मंत्र गुरु चाबी। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। विचारों के डर से मुक्ति पाने की चमत्कारिक मंत्र गुरु चाबी। आज सद्गुरु ओम ऋषि आपको एक ऐसे विषय की ओर ले जा रहे हैं। वह विषय
जो आपके जीवन में होगा तो आप बहुत व्यथित रहते होंगे। अपनी व्यथा इस लेख को पढ़ने के बाद और इसमें दिए गए मार्ग पर चलने से अवश्य ही दूर होगी। पिछले कई सालों से सद्गुरु ओम ऋषि के पास बहुत सारे भक्त इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर आते हैं और इस प्रश्नों का समाधान सद्गुरु ओम ऋषि करके देते हैं। साल 2017 में सद्गुरु ओम ऋषि को एक भक्त मिलने के लिए आए। वैसे तो पिछले 10 साल से अर्थात 2007 की साल से वह सद्गुरु ओम ऋषि की निश्रा में जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रश्न सद्गुरु ओम ऋषि को 10 साल के बाद कहा, जो आपको सद्गुरु ओम ऋषि उन्हीं के शब्दों में बता रहे हैं। गुरुजी, मैं सालों से आपके साथ जुड़ा रहा हूं। आपकी दया और कृपा से मेरे जीवन के कई सारे प्रश्नों के समाधान मिले हैं। इस वक्त मेरी उम्र 38 साल है, लेकिन मैं जब 28 साल का था तब से मुझे ऐसा डर अथवा विचार आ रहा है कि मैं बड़ी बीमारी की जकड़ में आ जाऊंगा और कम आयु में मेरी मृत्यु होगी। मेरे विचार इतनी हद तक मुझे भयभीत करते थे कि जिस बीमारी का होने का मुझे डर था, उस बीमारी का नाम लेने से भी मैं डरता था। मेरा डर मुझे इतनी हद तक सताता है कि मैं डॉक्टर के पास निदान करवाने जाने से भी डर रहा हूं। उठते, बैठते, खाते, पीते, काम करते मेरे मन में इसी बीमारी का डर मेरे जीवन के आनंद को खत्म कर रहा है। मेरी पत्नी को भी यह बात कहते हुए मेरा मुंह नहीं खुलता। 20 साल की मेरी इस मानसिक पीड़ा को सुनने वाले आप प्रथम व्यक्ति होंगे। मेरी यह मानसिक पीड़ा और बड़ी बीमारी के डर से मुझे मुक्ति दीजिए। इतना बोलते हुए भक्त की आंखों में से आंसू निकल पड़े। मैंने उनसे कहा, देख भाई, आज के आधुनिक युग में मनुष्य बहुत चिंता से गिरा हुआ है। देख, मैं तुझे एक सत्य घटना बताता हूं जिससे तुझे सीख मिलेगी और फिर मैं तुझे उपाय भी दूंगा। मेरे पास 1996 में जयंती भाई देसाई नाम के भक्त आते थे। जब वह मेरे पास आते थे तब उनकी उम्र 62 साल की थी। वह भी इस पीड़ा से घिरे हुए थे। मैं रोज सुबह गादी पर बैठता तब जयंती भाई बाहर आए हुए होते और रोज एक ही सवाल मुझे पूछते, गुरुजी, मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं होगी ना? और मैं हर रोज उनकी मुख मुद्रा की ओर देखकर कहता, ना, नहीं होगी, और उनका दिन उत्तम पसार होता। मैं उनको रोज समझाता था कि गलत चिंता मत कीजिए। जैसा आप सोचते हो वैसा कभी नहीं होगा, उसकी खातिरी मैं आपको देता हूं। सन 1996 से 2009 तक 13 साल यह प्रक्रिया सतत चलती रही। 2009 में जयंती भाई अमेरिका गए थे। अमेरिका में एक दिन रात को उनके पुत्र के घर गए थे। तब रात को पुत्र, पुत्रवधू और अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से बात की और साथ में भोजन लिया और भोजन लेने के बाद आराम से सो गए। बस वह रात उनके जीवन की आखिरी रात थी। सुबह वह उठे ही नहीं और 75 साल की उम्र में
रोग मुक्त जीवन जी के उनकी मृत्यु हुई। मैं तुझे यह सत्य घटना इसलिए बता रहा हूं कि जयंती भाई लगातार 40 साल बड़ी बीमारी के डर से डरते रहे। वह व्यक्ति 75 साल में नाखून में भी रोग के बिना मृत्यु को प्राप्त किया। उनको अपने आप को किसी भी तरह की पीड़ा का अनुभव भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बीमारी आने के डर के कारण 40 साल उन्होंने डर के जो जीवन जिया, उसकी वजह से उनके जीवन की कई सारी आनंद की क्षणों को वह नहीं मना सके। आज इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं, आने वाली कल के डर से तू आज का तेरा स्वस्थ वर्तमान मत बिगाड़। जो मंत्र मैंने जयंती भाई को दिया था, वह मंत्र मैं तुझे भी दे रहा हूं। इससे अवश्य फायदा होगा। मेरे भक्त श्री ने मेरे दिए हुए मंत्र और ओमकार चालीसा का पाठ नित्य रूप से किया और मैंने उन्हें ओमकार धाम तीर्थ पानवा गांव श्री क्षेत्रपाल वीर के दर्शन के लिए जाने का कहा था, जिससे मानसिक शक्ति और मनोबल मजबूत बनता है। मेरे मार्गदर्शन के मुजब यह सब करने के बाद आज वह भक्त श्री मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ है और 20 साल से बड़ी बीमारी के डर से उनका जीवन जो नर्क जैसा बन गया था, उससे उन्हें संपूर्ण मुक्ति मिल गई है। आज आपको भी मैं वह मंत्र दे रहा हूं। मंत्र ओम सर्वांग सर्वांग हरवीराय श्री क्षेत्रपाल मम रक्षा नमोति नमः। उपरोक्त दिया हुआ मंत्र 9 बार करके ओम ऋषि रचित ओमकार चालीसा का 1 बार पाठ करना। साथ में ओमकार धाम तीर्थ पानवा गांव श्री क्षेत्रपाल वीर के दर्शन करने 3 बार जाना। दर्शन करने जाओ तब श्रीफल उनके चरणों में रखकर मनोकामना करनी है कि मुझे यह विचारों के डर से मुक्ति मिले और मेरा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे। दर्शन करने के लिए माह के किसी भी एक रविवार को जाना। सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान। ओमकार के तेज से बिटे तिमिर अज्ञान। जय ओंकार सृष्टि के करता, नाद ब्रह्म त्रिभुवन के भरता। 3 गुणों के तुम हो स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी। शास्त्र पुराण अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरिहर और सनकादि। जपत निरंतर ओम की माला, सर्जक संहारक रखवाला। सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे। ओम जपत ही ध्वनि वो जागे, भूत पिशाच मूठ लई भागे। शब्द सूर सब ओम से प्रकटत, ओमकार है नाद अनाहत। योगी ध्यान में रटे निरंतर, ओम है सत्य शिवम और सुंदर। रिद्धि सीधी है ओम की दासी,
पड़े नहीं गल जम की फांसी। ग्रह दशा सब ओम सुधारे, जीवन में हो वारे न्यारे। मन क्रम वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ओम से वो सद्बुद्धि। आत्म अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे। अगम निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे। प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ओम नर नारी। ओम नमः का मंत्र जो ध्यावे, तीन लोक की संपत पावे। ओम त्रित्रांश क्रिया की शक्ति, इसी जन्म में दे मुक्ति। जीवन में भर देता ऊर्जा, ओम समंत्र नहीं कोई दूजा। ओमकार है प्राण चेतना, सुर नर मुनिवर करे वंदना। प्रणव मंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना। ज्ञान प्रकाश हृदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे। सात चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन। योग शक्ति का ओम है द्योतक, सतचित आनंद का है वाचक। वेद उवाच हरि ओम तत् सत, जग है मिथ्या ओम ही है सत। ओम है गंगा जल सा पावन, कर देता है शुद्ध जो तन मन। ओमकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन। दृश्य पदार्थ सर्व विनाशी, कालातीत ओम अविनाशी। ओमकार को राम ने ध्याया, जनक सभा में धनुष उठाया। गोविंद ने जब गीता गाई, ओम अपनी पहचान बताई। निराकार साकार मेरा जय, सृष्टि के कण कण में विराजय। धर्म अर्थ काम और मुक्ति, ओम से मिले सर्व संतुष्टि। ओम के बिना है यज्ञ अपूर्ण, ओम से ही स्वाहा संपूर्ण। ओमकार को जिसने ध्याया, लगी उसे ना जग की माया। 184 फंद छुड़ाया, मोक्ष द्वार पे ओम ले आया। पंच महाभूतों में समाया, अंतः चतुष्करण में छाया। ओमकार गायत्री विधा में, अमर तत्व है ओम सुधा में। ओमकार जो गावे निस दिन, सारे कष्ट मिटे हर पल छिन। शंकर के डमरू में गाजे, कृष्ण की मुरली में बाजे। पार्श्वनाथ भगवान के भीतर, गूंजे मंत्र ओम ही निरंतर। ओम ऋषि समान सर्वात्मा, ओम है सूर्य सरिस परमात्मा। जो यह पढ़े ओमकार चालीसा, सर्व कार्य हो सिद्ध हमेशा।
ओम पुरुष सृष्टि करना है पर ब्रह्म का रूप। ओमकार को जो रटे होवे ब्रह्म स्वरूप। ओमकार को जो रटे होवे ब्रह्म स्वरूप।